Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. If I were a Jew, I would be a Zionist. As a matter of fact, you don't have to be a Jew to be a Zionist. I have had the view for the past 24 years that the only way in which there will be peace in the Middle East is when the Arab nations know there is no division between the United States and Israel. What my record has been, it has been unstinted in the defense and support of Israel. The United States has never and will never lose our resolve. Israel. नाजरीन, पिछले 6 महीने से गाजा में हो रहे जेनोसाइड की इमेजेस और विजुअल्स पूरी दुनिया के सामने है। एक के बाद एक तबाहशुदा बिल्डिंग, मास ग्रेव्स, परखच्चे उड़ती लाशें, अपने बच्चों के जिस्म के अलग अलग पार्ट्स को प्लास्टिक में ले जाते फादर, अपने फैमिली मेंबर्स के कटे फटे लाशों को ढूंढती चीखती तड़पती माएं। ऐसे दर्दनाक इमेजेस पूरी दुनिया के सामने हैं। What did these children do wrong? What crime did they commit to deserve tons of bombs on their heads? जहां इजराइल की आर्मी और स्टेट ऑफ इजराइल फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है, वहीं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो बाइडेन इजराइल को इन सब के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। The defense of Israel is still critical, so there's no red line. We are not going to create any conditions on the support that we are giving Israel to defend itself. We will always be there by your side. The United States strongly supports Israel and its right to defend itself from Hamas, and that support is unwavering. I wanted to ensure, is that still the case, that the administration has no red lines at all? That is still the case. अक्टूबर 7 से अमेरिकन गवर्नमेंट ने इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर की मिलिट्री एड के अलावा डोमेस्टिकली इंटरनेशनली लगातार इजराइल को पॉलिटिकल और लीगल सपोर्ट देती आई है। मगर चूंकि अमेरिका में ये इलेक्शन ईयर है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेटिक पार्टी अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस में है। साथ ही मीडिया नैरेटिव में भी और हिपोक्रेटिकली चेंज आया है, जो न सिर्फ पैलेस्टाइनियन जेनोसाइड में अमेरिका के पूरे जुर्म को कवर करता है, बल्कि बाइडेन के खुद इजराइल को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट को भी स्ट्रेंथ देता है। सवाल यह है कि बाइडेन की लेगेसी क्या होगी। Nobody expects Prime Minister Netanyahu to do the things that must be done to break the cycle of violence. It's curious to me to see Netanyahu talk the way he does when he tried to interfere in American elections. We could go down the list of what Bibi Netanyahu has done to make Israel weaker, to make them open to that attack. There's no apology to be made. None. 18 मार्च को वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सटर्नल एडवाइजर्स के इंटरव्यू के बेस पर यह दावा किया गया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से जानती थी कि इजरायली बम्बार्डमेंट से गाजा में सिविलियंस और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वो जानते थे कि इजराइल ने हमास को हराने के लिए कोई एक्चुअल प्लान प्रेजेंट नहीं किया है। इन सब में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को एकदम से फ्री हैंड दे रही थी कि वो गाजा में जो चाहे करे, जो मर्जी आए करे। आर्टिकल जिस बात को, जिस आइडिया को पोर्ट्रे कर रही है, वो अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी को भी समझ आ रहा है। और वो आइडिया ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और अमेरिका इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इजरायली लॉबी की कठपुतली हैं। Netanyahu, I think, made a huge mistake by making himself a partisan figure. Netanyahu's interest, in a way, politically speaking, is to prolong the war. And right now, that's a direct conflict with the Democrats and Joe Biden. What is the President of the United States to do with an ally like that? Israel has a prime minister now who is incapable, unwilling, and in many ways politically unable to articulate such a vision. Netanyahu is not listening to us, and he's a part of a rather extremist project. The goals of President Biden and Prime Minister Netanyahu are fundamentally at odds. No more money to Netanyahu's war machine. अब इस आर्टिकल के मैसेज और आइडिया में वर्ल्ड पावर को समझने के लिए हमारे लिए 3 मसले हैं। पहला यह कि यह गाजा में जेनोसाइड, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ फलस्तीन, इजरायली अपर्टाइड सिस्टम, फलस्तीनियों के जमीन की चोरी और इथनिक क्लिंजिंग, इन सब के इल्जाम और ब्लेम को सिर्फ एक लॉबी और उसके लीडर नेतन्याहू तक लिमिटेड कर देता है। दूसरा मसला यह है कि यह उस गलत आइडिया
उस गलत अंडरस्टैंडिंग को और मजबूती देता है कि यह जेनोसाइड इजराइल या डेमोक्रेटिक इजराइल नहीं कर रहा है, बल्कि यह बस एक लॉबी और उसका लीडर नेतन्याहू कर रहा है। तो अगर नेतन्याहू हट गया तो सब ठीक होगा और हम वापस टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल में भी इशारा किया गया है। मगर सच्चाई यह है कि यहां सिर्फ एक स्टेट है, स्टेट ऑफ इलीगल इजराइल। ये जानबूझ करके पर्पसली न सिर्फ 75 साल के जालिमाना तारीख को मिटाने की कोशिश है, बल्कि इसके सहारे जो कोर फैक्ट्स हैं उसको भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे इजराइल बनने से लेकर आज तक एज ए नेशन इजराइल में क्या क्या हुआ है, क्यों इसमें फलस्तीनियों के उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन की कोई जगह नहीं है। एक तरफ जहां इजरायली पोल्स में नेतन्याहू को कम सपोर्ट है, वहीं गवर्नमेंट के इस जेनोसाइडल वॉर को विद इन इजराइल में ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। जहां 2/3 ऑफ इजरायली ये इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करने के खिलाफ हैं, वहीं 2/3 ऑफ इजरायली गाजा में फलस्तीनियों को एड पहुंचाने के भी खिलाफ हैं, और 80% इजरायली ये मानते हैं कि फलस्तीनियों की जो सफरिंग है, जो उन पे बीत रही है, उसकी इजराइल को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। इन सारे मसलों को सिर्फ नेतन्याहू तक लिमिट करने पर भी हमें यह समझना होगा कि अमेरिका को इजराइल से कोई फायदा, कोई लेवरेज न होने के बाद भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को एक छोटी सी कंट्री कंट्रोल कर रही है, जिसकी पूरी मिलिट्री खुद उसके एड पर डिपेंड करती है, सरवाइव करती है। हालांकि ये झूठे ड्रामेटिक लोग इस बात के लिए बड़े केयरफुल हैं कि इन सब का कॉन्सिक्वेंसेस ये ना हो कि दुनिया को ये लगे कि इजराइल ही अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। पिछले 7 महीने में जो कुछ भी हुआ है, खास तौर से जो नेतन्याहू की लड़ाकू मानसिकता है, इन सब को नजरअंदाज करने में थर्ड प्रॉब्लम यह है कि यह अमेरिका की गाजा जेनोसाइड में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कसूर को छुपा देती है, कवर कर देती है। एक ऐसा जेनोसाइड जो अमेरिका के बिना सपोर्ट के मुमकिन ही नहीं था। इन सब एफर्ट्स और फेक प्रोपेगेंडा का एक अहम मकसद ये भी है कि हम बाइडेन के वो सारे स्टेटमेंट्स जो वो कई दशकों से कहते हुए आए हैं, उन सबको इग्नोर कर दें। Early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me, I did not need to be a Jew to be a Zionist. You need not be a Jew to be a Zionist. I'm a Zionist. बाइडेन अमेरिकन हिस्ट्री के अब तक के सबसे प्रो इजराइल प्रेसिडेंट हैं। उनके सेनेटर के जमाने से लेकर के अब के प्रेसिडेंसी पीरियड में भी बाइडेन ने खुल करके बार बार न सिर्फ इजराइल को एक कंट्री कहा है, बल्कि इसको अमेरिका के लिए बहुत अहम पार्ट माना है। I don't think there's any senator who's ever done more fundraisers for AIPAC or gone around the country more for AIPAC. हम जानते हैं कि इजरायली लॉबी अमेरिकन पॉलिटिक्स में मैसिव रोल प्ले करती है, मगर बाइडेन को इस लॉबी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद बार बार ये कहा है कि इजराइल से मोहब्बत उन्हें बचपन से है, तब से जब उसके फादर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जेविश स्टेट की फजीलत और उसकी जरूरत, वर्चू और नेसेसिटी सुनाया करते थे। The miracle of Israel is Israel. It's Israel itself. The hope it inspires. The light it represents to the world. बिनेखम बेगिन इजराइल के लिए बाइडेन की मोहब्बत के बारे में एक इनफेमस स्टोरी बताते हैं। बिनेखम इजराइल के 6th प्राइम मिनिस्टर थे और इरगुन के लीडर थे। इरगुन एक ज़ायनिस्ट पैरामिलिट्री टेररिस्ट ग्रुप थी जो 1948 के अराउंड कई पैलेस्टीनियन जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार थी। जब 1982 में इजराइल बैरूत पर खतरनाक एरियल बॉम्बिंग कर रहा था, तब मेनाखम बेगिन डेलावेयर के यंग सेनेटर बाइडेन से मिले थे। बेगिन के अकॉर्डिंग बाइडेन ने बैरूत में इजरायली बम्बार्डमेंट की खूब तारीफ की और कहा था कि वो और ज्यादा बमबारी करते, चाहे उसमें बहुत औरतें और बच्चे क्यों ना मारे जाते। कॉन्टेक्स्ट के लिए बैरूत में इजराइल के उस बर्बरता को उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने हॉलोकॉस्ट कहा था। उसको बाइडेन ने तब अप्रिशिएट किया था और सपोर्ट किया था। Children are not avenged by the murder of other children. 36 ईयर के सेनेटर कैरियर में बाइडेन इजरायली लॉबी से चंदा लेने वाले सबसे बड़े लीडर थे,
जिसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट 2011 में 2000 अमेरिकन जेविश कम्युनिटी के सामने बाइडन ने फख्र से बयान किया था और कबूल किया था। यह बड़ा घटिया रिलेशन है कि पहले आप किसी लॉबी की फंडिंग से इलेक्शन जीतते हैं, फिर पूरे देश के लोगों के टैक्स के पैसे से किसी को एड के नाम पर या डिफरेंट एक्सक्यूजेस के जरिए बहुत सारा पैसा देते हैं। जब बाइडन 2008 में वाइस प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका इजराइल रिलेशन अपने उरूज पर था। वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़े हमले और फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिजास्टर में फंसे अमेरिका के लिए बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी पीरियड बहुत नाजुक थी। उन्हें अमेरिका की हिस्ट्री के लिए एक विजनरी के तौर पर देखा गया था। 2 wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century. मगर इतने होप और जिम्मेदारी के लिए खासकर फॉरेन पॉलिसी में बराक ओबामा बहुत इनएक्सपीरियंस थे। With relatively little foreign policy experience of your own, how will you rely on so many Clinton advisors and still deliver the kind of break from the past that you're promising voters? Well, I am. I want to hear that. Do I hear that? Well, Hillary, I'm looking forward to you advising me as well. इसीलिए इस पूरे मामले में डेलावेयर के एक ऐसे सेनेटर की एंट्री हुई जिसको फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता था, जो बाइडन प्रेसिडेंट ओबामा के फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनाई जिसने पूरी दुनिया में अमेरिका के वॉर को और एक्सपेंड किया। ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसने बराक ओबामा को यूएस हिस्ट्री का सबसे प्रो इजरायली यूएस प्रेसिडेंट बनाया। बावजूद ये कि ओबामा नेतन्याहू को पसंद नहीं करते थे, फिर भी जाते जाते ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा चंदा $38 बिलियन का मिलिट्री एड दिया था। No president has done as much for Israel's security as President Obama. 2020 में जेविश करंट पीटर बेनर्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा कि वाइस प्रेसिडेंट बाइडन लगातार नेतन्याहू को प्रेसिडेंट ओबामा से किसी भी क्रिटिसिज्म, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन सारे हंगामों में अक्टूबर 7 पर ओबामा का जो रिस्पांस था वो सारे डीप डिफरेंसेस का एविडेंस है। And what is also true is that the occupation and what's happening to Palestinians is unbearable. All of us have are complicit to some degree. I look at this and I think back, what could I have done during my presidency to move this forward? फिर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी, जो बिना किसी शक के फलस्तीनियों के लिए डिजास्टरस थी, जिसमें बहुत सारे इलीगल सेटलमेंट का एक्सपेंशन किया गया, अब्राहम अकॉर्ड हुआ, यूएस एम्बेसी यरूशलेम में शिफ्ट किया गया, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी गई। फिर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज को रिवर्स करने के बजाय उसको कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका के अंदर गाजा में जेनोसाइड के लिए और इजराइल के इस वहशियाना जुल्म पर एक नॉर्मलसी क्रिएट कर दी। हालांकि इन 6 मंथ में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह करके गुजारा है कि पूरी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में बहुत कंसर्न है, मगर सच्चाई यह है कि प्रेसिडेंट बाइडन और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने गाजा में जेनोसाइड होता रहे, ये जेनोसाइड कंटिन्यू रहे, इसके सिवा कुछ नहीं किया है। इसीलिए ये लोग सारा ब्लेम सिर्फ नेतन्याहू पर नहीं डाल सकते हैं। क्या नेतन्याहू ने बाइडन को 40 डिकैपिटेटेड बेबीज वाला झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था? क्या नेतन्याहू ने बाइडन को यह कहने पर मजबूर किया था कि मरने वालों की तादाद बताने में फलस्तीनियों का डेटा उनके लिए डाउटफुल है? क्या नेतन्याहू ने बाइडन को इजराइल में अंधाधुन वेपन सप्लाई करने के लिए मजबूर किया था? क्या बाइडन और ब्लिंकन को 2 बार इजराइल को इमरजेंसी वेपन सेल करने में कांग्रेस को बाईपास करने के लिए नेतन्याहू ने मजबूर किया था? किसने $18 बिलियन मिलिट्री एड अलाउ किया, जानते हुए कि इजराइल ये सारा पैसा गाजा में जेनोसाइड के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक पर्सन्स को जर्नलिस्ट के सामने आ करके इजराइल के वॉर क्राइम को
डॉक्यूमेंट करने से नेतन्याहू ने रोका है? क्या नेतन्याहू ने क्लिंटन के फॉर्मर एडवाइजर एरोन डेविड मिलर को द न्यूयॉर्कर से इंटरव्यू में यह कहने पर मजबूर किया कि वो क्लेम करें कि बाइडेन फलस्तीनियों को इजराइल के बराबर नहीं समझते हैं? क्या बाइडेन वाकई इतने मजबूर हैं, जबकि बाइडेन का सिर्फ एक फोन कॉल नेतन्याहू को इजराइल को गाजा के लिए 3 एड कॉरिडोर को टेम्पोरली ओपन करने के लिए मजबूर कर देता है, जहां से फूड और मेडिकल सप्लाईज नॉर्थ गाजा जाता है, जबकि गाजा के लोग महीनों से भूख से तड़प रहे थे। हमें यह बिलीव कराया जा रहा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म और जबर को, इस जेनोसाइड को रोकने में असहमत है, पैरालाइज्ड है, जबकि यह झूठ है। गाजा जेनोसाइड में बाइडेन के रोल पर अमेरिकन न्यूज कवरेज का पैटर्न बदलना चाहिए, और यह बदलाव बस एक सच को मानने से शुरू होगा, और वो ये है कि गाजा इज जो बाइडेन्स जेनोसाइड। गाजा में जेनोसाइड असल में बाइडेन करा रहा है। बाइडेन के स्टेटमेंट और उसके किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल के स्टेटमेंट को उस प्रेसिडेंट के हिस्ट्री और करंट गवर्नमेंट के एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, और ऐसा न करने से बुनियादी तौर पर अमेरिकन न्यूज मीडिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। ऐसा प्रोपेगेंडा जो इजराइल और अमेरिका को गाजा में जेनोसाइड के लिए अलाउ करता है, जिसमें ये सब उस जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार हैं और कसूरवार हैं। अमेरिकन न्यूज रूम्स इजराइल के लिए राह हमवार कर रही है कि वो इस वॉर को रीजनल वॉर में एक्सपेंड कर दे, जहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें खुला सपोर्ट मिलेगा। तो ये बात क्लियर रही कि गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसके लिए सिर्फ नेतन्याहू नहीं जिम्मेदार हैं, बल्कि ये पूरी लिगेसी जो बाइडेन की है और अमेरिकन मीडिया की है, क्योंकि अमेरिकन मीडिया ने जो बाइडेन को एक कवर दिया, उसके कसूर और उसके जिम्मेदारियों को न्यूज रूम में डिस्कस नहीं किया गया। तो ये जेनोसाइड बाइडेन की लिगेसी के साथ साथ अमेरिकन मीडिया की भी लिगेसी है। तो ये समझना होगा कि इस पूरे नेक्सस के पीछे कौन लोग हैं, कौन किसको बैक कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।